Hello everyone, welcome back in another topic. So today I picked up a very important topic regarding musculoskeletal injury. So we all physios give our best effort to treat the patient and make them recover from their injury. But sometimes patient starts having same problem at the same spot or different again and again, so that becomes quite challenging for all of us. So today I picked up this topic that is known as recurrent injury. So I'll detail you that what is recurrent injury, what are the factors which plays a major role in getting recurrent injury, and how we can deal with this. So I'll tell you the whole treatment protocol. So hit the like button and subscribe the channel to get such interesting videos on physiotherapy. You can see recurrent injury. Recurrent injury is an injury to any location on the body that previously sustained the same injury. अगर आपको सेम ही लोकेशन बार बार इंजरी हो रही, that is recurrent injury. So it is especially common among single sport athletes or people who focus on one type of exercise like runners. The reason you are working on the same muscles repeatedly, the end results your joint, muscle and tissue get worn out. So here we will see what are the causes of recurrent injury. The first cause is ignorance, second one is overuse, third one is abnormal posture, fourth one is too much too soon, fifth one is recovery failure. Ignorance, like you got injured and you had pain, right? So pain के बाद आपको क्या हुआ कि आपकी बॉडी रिकवर कर गई, बॉडी रिकवर्ड बाय itself. So then you ignored the pain, and then after a period of time, because body recovered कर गई, तो वो प्रॉपर जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और इसमें आपके डिक्रीज हुआ था जो आफ्टर पेन, वो चीज़ रिकवर नहीं हुआ था. बॉडी सिर्फ पेन से रिकवर हुई थी. तो अगेन व्हेन यू कम टू योर गेम देन यू गेट रिकरेंट इंजरी. सो डोंट इग्नोर योर पेन. ये आप बॉडी के ऊपर नहीं छोड़ना है, आपको खुद से वर्क करना है कि हम पेन से कैसे ओवरकम करें और अपने इंजरी से कैसे ओवरकम करें. सेकंड वन इज़ ओवर यूज़. ओवर यूज़ मतलब आप एक ही गेम, लाइक इफ़ यू आर अ रनर, तो आप सिर्फ रनिंग मत करिए. स्पोर्ट्स, अदर स्पोर्ट्स भी खेलिए, टेनिस खेलिए, बास्केटबॉल प्ले करिए, कुछ भी करिए, बट एक सेम गेम को नहीं खेलते रहना है. ओवर यूज़ अदर वे में कैसे हो सकता है कि आप एक ही मसल्स का बार बार सेम मसल्स का आप बार बार अगेन एंड अगेन आप यूज़ करते हैं. सेवरल टाइम्स यूज़ करने की वजह से भी इंजरी हो जाती. सो दैट इज़ व्हाट ओवर यूज़ इंजरी. थर्ड वन इज़ एबनॉर्मल पोस्चर. सो एज वी ऑल नो दैट एबनॉर्मल posture leads to weakening of one side of muscle and stiffness of other side of muscles. ओके, सो एक साइड की मसल्स वीक हो रही है, एक साइड की मसल्स स्ट्रांग हो रही है. सम टाइम इट लीड्स टू क्रॉस सिंड्रोम. तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि व्हाट इट डज, इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस, प्रोप्रियोसेप्शन, स्टेबिलिटी. सो आपको इस चीज़ से अगर बचना है तो आप अपने पोस्चर को करेक्ट रखें. सो कीप योर पोस्चर करेक्ट ऑल द टाइम. फोर्थ वन इज टू मच टू सून. लाइक यू गॉट इंजर्ड and then you got recovered following all the rehabilitation process. Rehab process के थ्रू आप recovered हो गए, right? But recovered. So but after certain period of time, recover होने के बाद again आप जाते हैं गेम में, then you went to game and बहुत जल्दी अपनी FIT को बढ़ा देते हैं. फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइम. तो बहुत जल्द अपनी FIT को बढ़ाने की वजह से आपकी मसल्स या आपके जो टिश्यूज़ हैं जो इंजर्ड हुए थे वो अभी इस FIT के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, इस इंक्रीज्ड FIT के लिए, और वो अगेन इंजर्ड हो जाते हैं. सो इन दिस वे यू कैन से दैट टू मच टू सून लीड्स टू रिकरेंट इंजरी. The fifth one is recovery failure. It's a big factor which plays a big role in getting recurrent injury. So we'll see it separately. Okay. So here
you can see that factors for recovery failure. Recovery failure has basically two factor. One is patient factor, the other one is therapist factor. So basically, this one is more common, this one is less common, right? So रिकवरी फेलियर जो होता है वो या तो कंप्लीट रेस्ट की वजह से होगा कि आपको इंजरी हुई, मान लो आपका नी में ग्रेड 1 ACL टीयर ग्रेड 1 हुआ, ग्रेड 1, तो आप पूरा रेस्ट करने के लिए घर पे बैठ गए, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई मोबिलिटी एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए आपको मूवमेंट करना है, इट डजेंट मैटर आप सेम जॉइंट का कर रहे हैं, आप दूसरे जॉइंट का भी मूवमेंट कर सकते हैं, जस्ट टू कीप द सर्कुलेशन इन अ गुड वे, और अपनी मसल्स के स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत आप मेंटेन कर सकते हैं इवन बाय यूजिंग आइसोमेट्रिक्स ऑल्सो। सो कंप्लीट रेस्ट नहीं करना है, इफ़ till the time if it is not required then don't do complete rest. sometimes complete load off करना पड़ता है तो complete load off करिए, वरना partial load off करके आप काम चला सकते हैं। बट complete rest जब भी आप करते हैं तो आप मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करिए, मसल स्टिमुलेटर का, just to keep the muscles in an activated form. second one is impatient. समटाइम्स पेशेंट जो होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता है, और पेशेंस ना रहने की वजह से वो गेम में जाते हैं, दे वेंट टू गेम वेरी अर्ली इवन विदाउट गेटिंग रिकवर्ड इन अ कंप्लीट वे। सो आप जब तक कंप्लीटली रिकवर्ड ना हो जाए आप गेम में ना जाए, जिसकी वजह से आपको रिकरेंट इंजरी हो सकती है। टू मच टू सून, अर्लियर आई टोल्ड यू कि अगर आप अपने FIT को बहुत जल्दी, इवन प्रॉपर रिकवर होने के बाद भी अपने FIT को बहुत जल्द बढ़ा देते हैं तो भी आपको इंजरी होने के चांसेस हैं, राइट। ओके, नाउ वी विल कम टू रिकवरी फेल्योर बाय बिकॉज ऑफ द थेरेपिस्ट। सो वी विल सी दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। सो थेरेपिस्ट की वजह से कैसे हो सकता है, तो इम्प्रॉपर रिहैब इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, सो विल नॉट गो टू दैट वन, बट हम ये देखेंगे कि कंप्लीट रेस्ट और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट लीड्स टू रिकवरी फेल्योर। तो ये कैसे ये वर्क करता है। अगर आप कंप्लीट रेस्ट और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सो दिस विल लीड टू दिस वन लाइन। ये रेड लाइन आपको दिखाता है कि आपने या तो रेस्ट लिया है या तो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया है। इट मीन्स कि आपका जो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होना चाहिए था, पावर प्रोप्रियोसेप्शन, ये सब नहीं है, वो घट गया है। ओके, होना यहाँ चाहिए था और हो यहाँ गया है। तो ये कैसे हुआ, आप इंजरी के टाइम में देखिए दोनों लाइन बराबर है। इंजरी होने के बाद आपका टिश्यू हेल्थ जो है, दिस वन इज टिश्यू हेल्थ एंड दिस इज टाइम। सो टिश्यू हेल्थ टाइम ग्राफ है ये। तो टिश्यू हेल्थ जो है डाउन जाता है, देन इट गोज़ अप, बट आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपका टिश्यू हेल्थ ऑप्टिमम लेवल तक नहीं जाता है। बट अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया देन योर टिश्यू हेल्थ विल गो टू अ सर्टेन ऑप्टिमम टिश्यू हेल्थ लेवल एंड विच इज़ गुड। तो वहाँ पर ये डेफिसिट नहीं मिलेगा। बट अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, दिस रेड वन, और वहाँ पर आपको डेफिसिट ऑफ स्ट्रेंथ, endurance, power, proprioception, stability, mobility, balance and coordination deficit and performance deficit. So this will lead to recurrent injuries. Okay, so now we will see that how to gain optimum tissue health. This is very important because I'll tell you what is the exact treatment protocol to come back from such kind of injuries, recurrent injury. Rehabilitation protocol for musculoskeletal injury to relieve pain and enhance healing of injured tissue. PRICE means protection, rest, ice compression, elevation. So use this plus ultrasound therapy plus movements either in a physical way or in a MS form, muscle stimulator. किसी से भी आपको मूवमेंट कराना है उस पार्ट का, ठीक है। प्राइस में रेस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो ही कंप्लीट लोड ऑफ करना है, कंप्लीट लोड ऑफ, अदरवाइज कंप्लीट लोड ऑफ नहीं करना है, आपको मूवमेंट्स कराने हैं, ठीक है। जब कंप्लीट लोड ऑफ कर देंगे तो आप MS का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड यूज़ करना है बिकॉज आइस
आपको पता ही है इट इम्पीड्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ करना है। इट विल इंक्रीज द सर्कुलेशन एंड प्रॉपर हीलिंग करता है, बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को स्टॉप नहीं करता है। फिर सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पर हम इसेंट्रिक ट्रेनिंग देख सकते हैं और MFR देख सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? आपका जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट सी दैट दिस इज़ योर बाइसेप्स एंड दिस इज़ योर ये फोर आर्म की मसल्स होगी, नो वरीज। चलो हम यहीं पर देख लेते हैं। सो ये फोर आर्म की मसल्स है, ठीक है, दीज आर द फाइबर्स, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लो ये इंजर्ड हो जाती है, इंजर्ड एट दिस एरिया, तो ये जब हील होगा तो यहाँ पे एक स्कार फॉर्म हो जाता है। स्कार फॉर्मेशन को हम ब्रेक करने के लिए एक तो इसेंट्रिक ट्रेनिंग करते हैं जस्ट टू इलोंगेट दीज फाइबर मसल फाइबर्स एंड वी डू MFR टू रिलीज दिस एरिया, ओके। सो ये सेकेंड स्टेज में करना है आफ्टर हीलिंग के बाद। उसके बाद हमें मोबिलिटी एक्सरसाइज कराना है, जॉइंट्स की मोबिलिटी एक्सरसाइज, वेदर वो रिस्ट जॉइंट हो या एल्बो जॉइंट हो, अभी के एग्जांपल के हिसाब से। प्लस आपको स्टेबिलिटी एक्सरसाइज भी कराना है सो दैट जॉइंट्स के लिगामेंट्स को हम ट्रेन कर सकें बेटर वे में। आफ्टर इस स्टेज को जब हमने पार कर लिया, क्रॉसिंग दिस स्टेज विल गो टू लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस मॉडरेट एंड्योरेंस ट्रेनिंग। जो भी जॉइंट है उसके हिसाब से हम उस ट्रेनिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो फाइनल स्टेज होता है दैट इज़ इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस इंटेंस एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्लस इंटेंस प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, दैट इज़ व्हाट स्टेबिलिटी ट्रेनिंग और अदर्स आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो जब आप इनको इंटेंस वे में करेंगे, साथ ही साथ आपको पेशेंट के गेम के हिसाब से ट्रेनिंग करनी है, गेम ओरिएंटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए, या जो भी उसका लाइफस्टाइल ऑक्यूपेशन है उससे ओरिएंटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए ये फाइनल स्टेज में। सो फर्स्ट वन इज यूज अल्ट्रासाउंड विद प्राइस प्लस मूवमेंट्स, ओके। सेकेंड स्टेज इसेंट्रिक MFR just to release this area, and after that you can use stability and mobility exercise. Third stage light strength training, moderate endurance training. Fourth one is intense strength training plus intense endurance training plus intense proprioception training. Balance and coordination exercises आपको करानी है so that कि आपके उस जॉइंट में जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी वो बेटर हो जाए। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड इफ़ यू फाइंड एनी ओपिनियन फॉर मी then let me know in the comment box. Give Thank your you so much. opinion in comment box and thanks for watching.